Actors Rohit Saraf, Pashmina Roshan and Jibran Khan joined ANI for an exclusive interview to promote their upcoming romantic comedy Ishq Vishk Rebound, set to release on June 21st. The film, which explores the lives of four young people entangled in friendship, love and self-discovery, promises a fresh take within the beloved franchise. Saraf emphasized that while the film shares the essence of love and confusion with its predecessors, it's not a direct remake. Khan reflected on his journey from childhood stardom to his major role, while Roshan recounted her persistent efforts and training leading up to this significant opportunity. The cast shared heartfelt anecdotes and the joyous experiences they had while shooting the film. Take a look. As an actor, मुझे हर तरीके के रोल करने हैं, but मेरा favorite genre हमेशा romance रहेगा. तो I feel एक तरफ मैं बहुत सारे different characters और different genres explore करना चाहूँगा, but at the same time I will always want कि मैं romance की तरफ वापस आऊँ. Romance is something जो हम बड़े हुए देख के, तो वो थोड़ा already हम में है in some way or the other. So yes, but of course would like to explore better roles and more diversity with जैसे आगे बढ़ती जाए जिंदगी. Yes, Amita ma'am has so sweetly recreated one of our songs on her जो दिल पे लगी, which was really hers. And we have made a rendition of it, so she made a read on it. It was very sweet. Shahid sir also posted for us many times because they're so busy and we haven't had a chance or the opportunity to speak to them one-on-one, but we can feel their good wishes always with us, and we're so grateful for that. And we're so grateful that we got to take the legacy of this franchise forward. Remakes के साथ definitely बहुत सारा pressure होता है makers पे, actors पे, but हमारे ऊपर उतना ज़्यादा pressure हम feel नहीं करते इसलिए क्योंकि ये remake नहीं है. You know, the Ishq Vishk Rebound is not a remake of Ishq Vishk. I think जैसा मैंने पहले बहुत बार कहा है, हमारी जो फिल्म है वो same franchise को belong करती है, but इसमें चारों किरदार बहुत अलग हैं, स्टोरीज बहुत अलग हैं. ऑफ कोर्स जो एसेंस है इश्क विश्क का, जो कि प्यार है, कन्फ्यूजन है, और प्यार के साथ जो हज़ार डिफरेंट इमोशंस आते हैं, वो सब एसेंस सेम है. बट आई थिंक स्टोरी डिफरेंट है क्योंकि हमारी स्टोरी जो है वो आज के जनरेशन के ऊपर है, आज के जनरेशन की प्रॉब्लम्स के ऊपर है. आई थिंक 21 साल पहले प्यार की जो परिभाषा थी वो बहुत अलग थी और आज बहुत अलग है. तो आई थिंक जो हमारी स्टोरी है वो आज के जनरेशन को ज़्यादा आई थिंक रिलेटेबल लगेगी. एंड ऑफ कोर्स जब मिलेनियल्स जो पहले की जनरेशन है वो भी जब देखेंगे, जैसे हम खुद एक्चुअली नहीं, हम तो कस्प पे हैं, ना मिलेनियल्स हैं हम ना जेनजी है, वी आर एक्चुअली ज़िलेनियल्स. नया वर्ड है, ये नया वर्ड है जो हमने सीखा है. बट आई थिंक जब मिलेनियल्स भी देखेंगे तो उन्हें भी एक ऐसा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी ये फिल्म देखकर. So yeah, I think to talk about what you said, I don't think we feel so much pressure, but अब पता है इतनी बातें हो गई हैं प्रेशर की कि अब ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा उसका इफेक्ट आने लगा है. बट नहीं, हमें जितना भी हमने अभी तक रिलीज किया है, टीजर, ट्रेलर, बहुत प्यार मिला है, एंड वी आर जस्ट रियली होपफुल कि वो जब फिल्म भी आए तब भी उतना ही प्यार मिले. Rohit, you are national crush of India. So do you feel Jibran will take this title soon? Oh. He must. I think everyone is crushing on Jibran right now. And I feel he's fully worthy of being a national crush. इसकी body बहुत अच्छी है, ये दिखता है इतना सुंदर है, acting अच्छी करता है, लड़कियों से flirt एक नंबर करता है. तो I definitely feel, most definitely he should take the title. गुरु शिष्य. अच्छा सीख रहा हूँ. Oh my God. Very nice. I want to first know about their journeys, how they feel about, you know, how has it been? I think it's a fair question to ask Jibran first. That it's been such a long time. How old were you when you did Kabhi Khushi Kabhi Gum? 7, 8. 7, 8. 7, 8 or 9, yeah. It's been a lot of time. It's been a long journey. Long first, you talk about your journey. You must. नहीं, मैं एक चाइल्ड एक्टर था. मैंने बहुत एड्स किए थे, फिर मैंने 3 फिल्म्स भी की थी. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स यू नो, जैसे पहले कहते थे कि अगर
एक्टर बनना है तो छुपा के रखो, क्योंकि वो जितनी बार देखेंगे वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी एंड ऑल दैट। हाँ, ये बहुत बोलते हैं कि ओवर एक्सपोज मत करो अपने ये बचपन, ये पहले आई थिंक पहले ये बहुत बोला जाता था। अमरीश पुरी सर ने मेरे मॉम डैड को ये कहा था, एंड वी डिडंट एक्ट आफ्टर द थर्ड फिल्म आई डिड कॉल्ड रिश्ते। बट वो जर्नी के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने शामक दावर के साथ इंस्ट्रक्टर बन गया मैं, फिर मैंने ब्रह्मास्त्र पे ईडी बना। उसके बाद एक्चुअली मैम द रियल जर्नी बिगिन पोस्ट ब्रह्मास्त्र, जहाँ पर जो एक्टर की एक आई थिंक प्रतिज्ञा होती है, जो करना होता है उनको, जो चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है टू जस्ट गेट योर फर्स्ट फिल्म। आई थिंक वो 3-4 साल उसी में लग गए, कोविड आ गया, तो वो जर्नी थोड़ी ऊपर नीचे रही थी। बट जब आज ऐसी इतनी बड़ी फिल्म मिलती है, अ न्यूज़ चैनल लाइक यू इंटरव्यूज अस, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट मैम। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत एनर्जेटिक है, और हमको ये सब आई थिंक एक ख्वाब है जो हम जी रहे हैं। और थोड़ी नर्वसनेस तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, बट आई थिंक विथ डे एंड विथ एवरी डे व्हाट एवर लव वी आर गेटिंग, आई थिंक वो प्यार ही इतना काफ़ी है कि हम थोड़ा थोड़ा वो एनर्जी मिल रही है कि अगले दिन पे चले जाए, अगले दिन पे चले जाए। I think with Pushpina also, she ये हमें हर इंटरव्यू में बता रही है कि इनका सपना कोई मिल गया से शुरू हुआ of becoming an actor, क्योंकि वो कोई मिल गया के सेट पे जाती थी। It's been a long time. So I think मैं जब छोटी थी तो मैं और मेरी बहन सुरानिका कोई मिल गया के सेट पे जाते थे, और उन्होंने फिल्म सिटी में एक छोटा सा कसौली बनाया था जो टाउन था कोई मिल गया का, और हमें ऐसे लगता था कि हम कभी घर ही ना जाएं, इधर ही बैठे रहते हैं, यही हमारा घर है। और उस दुनिया में हम भी बस जाते थे। मतलब अगर रोहित बहुत ज़्यादा बॉर्नवीटा पीता था तो हम भी पीने लगे। तो वहीं से ही मेरी जो फिल्मों में दिलचस्पी है वहीं से शुरू हुई। फिर जाके हमने स्कूल में थिएटर किया, और फिर हमारी एक बहुत ही अच्छी टीचर थी मिस आमला राय, and because of her dedication all of us in that class became very very dedicated to acting, and from there college happened, और college के बाद थोड़ी insecurity आ गई उसके मेरे मन में कि क्या मैं एक्टर बन सकती हूँ, क्या मुझे एक्टिंग आती भी है, मतलब स्कूल में थिएटर कर लिया, that doesn't mean I can be an actor. So actually I had applied to different universities in the UK for marketing. I don't think you guys know this. Wow. So I got into Warwick University, and ऐसा हो गया है कि वीज़ा हो गया है, रूम्स बुक हो गए हैं, सब चीज़ बुक हो गया है। हमारी समर हॉलीडे थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मतलब हमारे सारे फ्रेंड्स पार्टीज़ में जाते थे, they would do everything, और मैं बस सोती रहती थी आफ्टरनून में। And I was very young, and it was very I think I was like 19 or something. I was always in bed. तभी मुझे I like to analyze myself a little bit. So I went and I got to the root of the problem, and I realized that okay, I'm not. मुझे याद आया कि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि एक फनकार को अपना फन बनाना चाहिए हमेशा। तो मैं तो आर्टिस्टिकली सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी मार्केटिंग में। आई डोंट थिंक आई वाज गुड फॉर इट। तब से ही मैंने एक फ़ोटो शूट किया एक्चुअली देखने के लिए कि क्या है कुछ मुझ में। मैंने अपने फादर को दिखाया, मैं अपने ताऊजी को दिखाया, उन्होंने बोला हाँ है, सब में कुछ ना कुछ होता है, पर उसको आपको पॉलिश करना है। तो तब से ही मैंने बैक टू बैक एक्टिंग क्लासेस की है, डांस क्लासेस की है। मैं जब छोटी थी तो हमने भरतनाट्यम सीखा था, पर अब सिर्फ भरतनाट्यम से काम नहीं चल सकता, आपको और भी तरह के डांस सीखने पड़ेंगे, वो किया है। उसके बाद हमने बैक टू बैक ऑडिशंस देना शुरू कर दिया, और बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद बहुत सारी अपने आप को परख के कंटिन्यूसली फीडबैक लेके अपनी फैमिली से आई थिंक काफ़ी सालों बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे ये फिल्म मिली है, और उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक दिन नहीं जाता कि जब मैं भगवान को थैंक यू नहीं बोलती।
अपने माता पिता को थैंक यू नहीं बोलती उनकी एडवाइस के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरी पूरी फैमिली ने। जस्ट इमोशनली जो सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है वो इमोशनल सपोर्ट होता है। और जब आज जाके हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतने अच्छे को स्टार्स मिले हैं, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले हैं जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना अच्छा डायरेक्टर मिला है, तो आई थिंक मैं क्या ही बोल सकती हूँ इसके बाद। फन मेमोरीज तो मैम, जब हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं जो कि एक रोम कॉम है, एवरी डे ऑन सेट इज अ पार्टी। बहुत बहुत मस्ती करते थे, एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे हर शॉट के बीच में। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें डांट पड़ी है क्योंकि हम हंसना बंद नहीं करते थे शॉट के बीच में। सो आई थिंक एवरी डे वाज अ पार्टी विद देम। बट आई थिंक वन ऑफ माय फॉन्डेस्ट मेमोरीज टुगेदर विथ माय को-एक्टर्स जिब्रान, पश्मीना, नायला इज दैट वी यूज्ड टू ईट टुगेदर। हम साथ में खाना खाते थे, और वो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ एक मील शेयर करते हैं, उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और हमने एक्चुअली बहुत मील साथ में खाए हैं। हम सेट पे तो ऑफ कोर्स साथ में खाते ही थे, बट इवन आफ्टर पैकअप हम 12 घंटे एक साथ शूट करने के बाद भी वापस होटल जाकर साथ में ही खाना खाते थे। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज फ्रॉम द सेट्स ऑफ इश्क। इन दोनों को फोन करती हूँ रोते हुए ये नहीं हो रहा, ये हो गया, वो हो गया। और both Rohit and Jibran at multiple occasions have gone and gone like, no Pashmina, okay, and they pacified me, which I find that the cutest thing about both of them. Not once have they gone like, अरे तू कितना रोती है यार। I'm pretty sure ये एक दूसरे को बोलते होंगे, पर नहीं बोलते यार, नहीं बोलते, इतने भी बुरे नहीं। They are like they're like my two protectors, I feel. So nice. Yeah. इन दोनों में से वैसे बताएं कोई कि मतलब नोटोरियस कौन था सबसे ज्यादा, आपकी लैग पुल कौन करता था जिब्रान और रोहित में से? दोनों, पर लड़ाई मेरी सबसे ज्यादा रोहित के साथ होती है। एक ऐसा दिन था जब हम where were we fought to हम एक्चुअली हमारा देहरादून का शेड्यूल खत्म हो चुका था, हम मुंबई आए थे वापस, और मुंबई का हमारा लास्ट शेड्यूल था वो, एज इन टॉकी पोर्शन का वो हमारा लास्ट शेड्यूल था। और उस दिन निपुण सर का बर्थडे था, हम जुहू में शूट कर रहे थे। उस शूट के बाद हमने केक वेक काटा और हमने डिसाइड किया कि आज रात को हम पार्टी करने जाएंगे। सो वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड फू इन बैंड्रा, एंड वहाँ पर जाकर I don't know हमारी लड़ाई शुरुआत कैसे हुई वहाँ पर। But I wanted to leave, I think, and you wanted to stay. ये घर जाना चाहती थी और मैंने कहा तुम अभी नहीं जा सकती, ये बहुत जल्दी है, you have to be with all of us. So we started a fight over there. हमारा उस 3 घंटे की पार्टी में पहले हमारी लड़ाई हुई, फिर हमारा पैचअप हुआ, और इसके निकलने से पहले वापस एक लड़ाई हुई जो कि अगले दिन पैचअप हुआ। So I think this used to keep happening between the two of us. So you become like a Tom and Jerry friends. Yeah. But Tom and Jerry also love each other the most. Yes, absolutely. See, there's no Tom without Jerry. I read somewhere that it is Tom and Jerry, not Tom versus Jerry. Yeah. Yeah, It's It's very Tom nice. and Jerry. Yeah. I'm the bulldog in Tom and Jerry. मतलब जिब्रान इज द वन कि वो शांत रहते थे, आप लोग को संभालते। बिल्कुल नहीं मैं है। बोल रहा हूँ, मैं बस bulldog अभी शांत बैठे हैं। अच्छा, okay. बिल्कुल शांत नहीं है।